Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Yadvendra. How are you? Ma'am, fine. And how are you? I'm also good. Okay, nice to. Yadvendra, you are attending all the classes, no, beta? Yes, ma'am. Ah, very good. Very good. Good morning, ma'am. Good morning, Sanya. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, Aksada. Good morning, Dhruv. ध्रुव कल आपने सेकंड क्लास अटेंड नहीं करा था, ऐसा क्यों? कोई स्पेशल रीजन? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. यस. मैम नेटवर्क खत्म हो गया था. डाटा खत्म हो गया था. नेटवर्क खत्म नहीं हो सकता, डाटा खत्म होता है. मैम आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? सिविक्स. हाँ, इस समय सिविक्स की हिस्ट्री कर लेते हैं. ओके मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा आयुष. तो बेटा आपकी तो पांचवा दिन है, आपने 5 दिन की छुट्टी मांगी थी. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, और आपने 5 दिन की छुट्टी की. मले गुड मॉर्निंग बेटा. स्वाली गुड मॉर्निंग. मैम. और इन 5 दिन की छुट्टी के बीच में आपने केवल 1 दिन क्लास अटेंड करी है, और वो भी सिर्फ एक. आई थिंक सेकेंड या थर्ड पीरियड की कोई क्लास अटेंड करी थी वेडनेसडे में आपने, शायद वेडनेसडे या थर्सडे में. एम आई राइट? यस मैम, बायोलॉजी क्लास. हाँ, तो ये क्या बात हुई भाई? अब बाकी क्लासेस आपने छोड़ दी, छुट्टी मांग ली, और जो है, तो ये छुट्टी किस वजह से थी, ये हम जान सकते हैं? Actually, I'm out of station. That's why. You are still out of station? Yes, ma'am. Ma'am, what about the notebooks? I haven't collected them. What? Ma'am, notebooks. You only have to collect them. Circular was passed long time back. I think 5th you were supposed to collect them, right? So you tell me, because you told me 5 days you won't be attending the class, Ayush. Chalo, fine. Yes, ma'am. I'll mark you present for today then. I hope you have attended other classes also. Yes, ma'am. Pakka? Yes, ma'am. Ask anybody. No. Why will I ask? I will ask the teachers, those who are taking your classes for today. Fine? Yes, ma'am. Okay. Tell me one thing, class. Is Chirag Excuse attending? me, ma'am. Yes, beta Dhruv. बोलो बच्चा. ध्रुव, आवाज समझ में नहीं आ रही है, आपकी आवाज इको कर रही है बहुत ज्यादा. Ma'am, schools are reopening from 15. Good morning, ma'am. Good morning, Deepshika. Beta, I have no clue about this. Fine? जब हमें पता चलेगा हम बता देंगे, ठीक है? Ma'am, the school will tell at the peak. Beta, school will tell, don't worry. Right? चलो. Okay, ma'am. हम कहाँ पे थे हिस्ट्री में बेटा? प्लीज इफ यू कुड टेल मी. Ma'am, hand labor and steam power. अच्छा. Ma'am, we have to start from. Ma'am, we have done this. ठीक है, we have done this hand labor and steam power. ठीक है, let me share. Yes, ma'am. Let me share the book with you all. Ma'am, we have to start from industrialization in colonies. Okay, we have to start from industrialization in colonies.
Class, can you see the screen? No, ma'am. No, Okay. ma'am. Now can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. We have to start from industrialization in the colonies, right? Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आनंद क्लासेस अटेंड कर रहे हैं क्या? Class, Yes, ma'am. is Anand attending his classes? Ma'am, I don't have any idea. Okay, you need to get an idea. Ma'am, not in a single class. हाँ, वही. And then, ma'am, he calls me that you send me the work of this and this, ma'am. I block his number. Don't do this at all. Those who are not attending, no need to send them the work as well. कोई फायदा ही नहीं है काम भेजने का. कोई फायदा है? आनंद बेटा, आप क्लास में हैं क्या? Yes, ma'am. बेटा एक बात बताइए, आप क्लास में होते हो और हम आपका नाम बुलाते रहते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? Yesterday also you joined. I was calling your name and you were not there. No, my voice is not. My voice was not coming to you. Yes, ma'am. Is that so? Ma'am, really. अच्छा, चलो मान ली हमने आपकी बात, पर बाकियों को तो हमारी आवाज आ रही थी, बाकी तो आराम से सुन पा रहे थे. हाँ, क्यों? Yes. चलिए. Okay, the age of Indian textiles. Did I explain anything in this to you people? No, ma'am. Good morning. No, Who is ma'am. this? Who is this? विवान? Yes, ma'am. चलिए ठीक है. देखो बेटा, ये जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज से पहले के केस को हम पता, इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से जब 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 तक इंडिया कॉलोनी नहीं बनी थी ब्रिटिश की, उससे पहले जो था इंडियन सिल्क और इंडियन कॉटन जो है इतना ज्यादा वर्ल्ड फेमस था कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी. ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा क्लास 7th और 8th में. Yes, ma'am. है ना. तो इंडियन टेक्सटाइल की बहुत डिमांड थी, जिसकी वजह से आप जानते हैं दूर दराज के देशों से, मतलब सऊदी, ये जो आपका अरब नेशंस हैं, वहां से, सेंट्रल Middle East. एशिया से, अफगानिस्तान से, पर्शिया से, ठीक है, अर्मेनिया कहाँ है जानते हैं? रशिया के पास. अर्मेनिया, पर्शिया, यहाँ के मर्चेंट जो है इंडिया आते थे. वो अपने साथ कैमल्स लेके आते थे. कैमल्स जानते हैं ना क्या होते हैं? ऊंट जिनको हम बोलते हैं, उन्हें लेके आते थे. हाँ, Ma'am, but now Armenia is not a country. अर्मेनिया कंट्री है भाई, छोटा सा. No, ma'am, it was, ma'am. There was a fight between Armenia and Azerbaijan, then Azerbaijan occupied on Armenia. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने बेटा न्यूज में. मैम है. क्या है बताओ. Factory है. हाँ, Ma'am, there was a fight between country है. Armenia and Azerbaijan. बेटा वो बात सही है, वॉर चल रही थी इनके बीच में, पर कॉम्प्रोमाइज भी तो हो गया था, सुलह हो तो गई थी. Okay, ma'am. हाँ, चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अर्मेनिया और इसको नहीं पढ़ना है हमको इसमें, ठीक है. व्हाट आई एम टेलिंग कि थ्रू आउट वर्ल्ड कॉटन जो है प्रोड्यूस होता था, पर जो कॉटन बाहर की कंट्रीज में प्रोड्यूस होता था उसकी जो वेराइटी थी वो अलग थी, और जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था इट वाज कंसिडर्ड टू बी दी वन ऑफ द फाइनेस्ट. ठीक है,
इस वजह से इंडियन कॉटन का बहुत ज्यादा महत्व था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप ये समझो कि कैमल्स को लाया जाता था और कैमल्स की बैक पे जो कॉटन बॉल्स होते हैं, बेल्स, बेल्स मतलब कॉटन, रॉ कॉटन, कॉटन के जो वो होते हैं, कॉटन की बॉल्स आपने देखे कैसे होते हैं? Yes, ma'am. वो जो है पूरा का पूरा डाल के और जो है थ्रू माउंटेन पासेस इनको ले जाया जाता था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि केवल लैंड रूट के थ्रू ही जो है ट्रेड हो रहा था। यस विवान, क्या करना चाह रहे हैं आप? चलिए बेटा, ऐसा नहीं था कि केवल लैंड के थ्रू ही जो है ट्रेड हो रहा था, इवन आपका जो है पोर्ट्स के थ्रू भी ट्रेड हो रहा था। अगर हम बात करते हैं प्री कॉलोनियल पोर्ट्स की, तो हम सबको पता है सूरत, हुगली और आपका कोरोमंडल कोस्ट पे मसूलीपट्टनम, ये जो 3 पोर्ट्स थे इन्हें प्री कॉलोनियल पोर्ट्स कहा जाता है और ये काफी फेमस थे। जो जैसे सूरत का जो पोर्ट था वो वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए जो है यूज करा जाता था, और हुगली और मसूलीपट्टनम का जो पोस्ट था जो कि आपका कोरोमंडल कोस्ट पे था, उसको जो है साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स या साउथ एशियन कंट्रीज जो थी उनसे ट्रेड करने के लिए जो है यूज किया जाता था। आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, और जानते हैं इस ट्रेडिंग में चलो हम आपको वो एक पीपीटी शेयर करते हैं, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें पिक्चर्स भी बनी हुई है ना, तो आपको अच्छा लगेगा उसको देखने में। गिव मी अ सेकेंड ना। Excuse me, ma'am. जी बेटा, स्वाली बोलो बेटा। Ma'am, actually, we have to start from page number 110, Life of Workers. नहीं, ये तो हमने कर लिया था कल। मैम ये हो चुका है। हाँ, कल करा तो था हम लोगों ने। Ma'am, but in last class we did civics, and before that we did till above para of Life of the Workers. आर यू श्योर? Yes, ma'am. हमें ध्यान है कि हमें यहीं से करना था। Ma'am, I was there in class, and ma'am, I only have read the last paragraph. हाँ तो ये हमने कर तो लिया था बेटा, ये हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। कैन यू सी द स्क्रीन क्लास? Yes, ma'am. Yes. What can you see on the screen? Ma'am, Ma'am, the book. Ma'am, the Ma'am, age the of book. Indian textiles. ये कैमल वगैरह की पिक्चर दिख रही है आपको? No, ma'am. No, ma'am. ओके, वेट। नाउ कैन यू सी? Yes, ma'am. अब दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। ये जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हम आपको समझा रहे थे, ये पिक्चर के थ्रू आप देखो, जैसे ये जो कैमल बैग्स हैं इनके ऊपर ये कॉटन बेल्स जो थे वो रख के लेके जाया जाता था, और ये लैंड रूट है, और यहाँ सूरत पोर्ट लिखा हुआ है। ये जो सूरत पोर्ट है ये दिस वाज ट्रेड विच वाज कैरिड थ्रू दी सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नाउ लुक एट दिस मैप। ये मैप हमें बताता है किस तरीके से अलग अलग पोर्ट एरियाज से, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, अगर आप ये देखते हो, ये जो सूरत है, सूरत से ये सूरत हुआ, ये आपका
कोरोमंडल कोस्ट पे मछलीपट्टनम हुआ, ठीक है, फिर ये हुगली हुआ। किस तरीके से ये जो पोर्ट, ये जो आपके पोर्ट एरियाज हैं, सूरत का पोर्ट जो है इट वाज यूज्ड टू ट्रेड विद द वेस्टर्न पार्ट्स, जैसे आपका ये अरेबिक कंट्रीज नेशंस हैं, इनमें यहाँ पे ट्रेड होता था, और सूरत और हुगली और मसूलीपट्टनम से आपका ये साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, ये आपका इंडोनेशिया वगैरह हुआ, ठीक है, ठीक है। मैम मसूलीपट्टनम लाइस इन विच स्टेट? मसूलीपट्टनम आपकी आंध्रा में है बेटा, ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम। चलिए, ये मैप क्लियर है आपको? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. अब आप आ जाओ। अगर हम बुक पे स्विच करते हैं, अच्छा, अब ये जो ट्रेड का प्रोसेस था बेटा, ये बहुत ही सिस्टमैटिक था। जैसे क्या होता था, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे और एक्सपोर्टर्स थे। ये जो मर्चेंट, बैंकर्स और जो एक्सपोर्टर्स थे, इनका एक बहुत ही सॉलिड एक नेटवर्क था, जिसमें क्या होता था, जो मर्चेंट्स थे ये वीवर से काम लेके आते थे और बैंकर्स इनको फाइनेंस करते थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये पोर्ट एरियाज में अपने ये कॉटन टेक्सटाइल्स को लेके जाते थे, और वहां पे जो एक्सपोर्टर्स होते थे उनको अपनी मर्जी के प्राइजेस में उसको सेल आउट करते थे। बैंकर्स अपना प्रॉफिट रखते थे, मर्चेंट्स अपना प्रॉफिट रखते थे, और जो वीवर्स होते थे उनको उनका प्रॉफिट दे दिया जाता था। तो ये एक बड़ा ही क्लीन सा सिस्टम था, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क कर रहा था। और इसी वजह से, मतलब आप ये समझो, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा ही बहुत ही क्लियर सा नेटवर्क था, तो इस नेटवर्क के जरिए पूरे वर्ल्ड में इंडियन, हमने आपको बताया जो ट्रेड रूट जो है ये लोग फॉलो कर रहे थे, उसके थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इंडियन टेक्सटाइल्स और सिल्क जो है वो फेमस था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने ये देखा कि जब 17th सेंचुरी में, समवेयर इन 16th सेंचुरी, जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा, धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड कंसेशंस मांगने शुरू करे। आपको याद होगा क्लास 8th में जब हमने बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी पढ़ी थी, उस टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से फारूक शेर जो थे, मुगल रूलर्स, लेटर मुगल रूलर्स जो थे, इन्होंने इन जो यूरोपियन कंपनीज थी इनको क्या करा, खूब कंसेशंस दिए। और एक टाइम ऐसा आया कि फरमान के थ्रू उनको फरमान दे दिया गया कि आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेड कर सकते हो। मतलब जो इनिशियल जो प्रॉफिट मुगल रूलर्स ले रहे थे उनको मना कर दिया गया, ठीक है। तो जब इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करने की परमिशन मिल गई, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, इन्होंने जो पुराने पोर्ट्स थे, क्योंकि वो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, हमेशा कभी मुगल्स उस पर अटैक कर रहे हैं, कभी मराठास अटैक कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब राइज ऑफ द 18th सेंचुरी में जब हमने राइज ऑफ द न्यू किंगडम्स पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था किस तरीके से जो जिन पोर्ट से ट्रेड किया जाता था, कैसे उन ट्रेड्स पे जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था। कभी मुगल्स जो है सामान लूट रहे हैं, कभी मराठा सामान लूट रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग के लिए जा रहा था। तो धीरे ये जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने क्या करा, इनको लगा कि ये जो पुराने पोर्ट्स हैं उनके थ्रू अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम लॉसेस में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से जो ट्रेड हो रहा था, जो आपस में जो राइवलरी थी, उसकी वजह से लोग क्या करते थे, यूरोपियन कंपनीज ही, मतलब चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे फिर वो आपके डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश ब्रिटिश ही क्यों ना हो, ये लोग क्या करते थे, इनकी जहाजों को पानी में डुबा देते थे, ताकि इनका सामान वहां ना पहुंच पाए और प्रॉफिट जो है वो दूसरे को मिल जाए। तो इसकी वजह से भी जो है क्या हुआ, पुराने पोर्ट्स को जो यूजेज था वो खत्म कर दिया गया। जो लोकल मर्चेंट्स पुराने पोर्ट पे जो है ट्रेड कर रहे थे, धीरे धीरे उनका कंट्रोल वहां खत्म हो गया, क्योंकि नए पोर्ट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। अब जब नए पोर्ट्स एग्जिस्टेंस में आए, स्पेशली कौन से, बॉम्बे और कलकत्ता के। बॉम्बे और कलकत्ता के इसलिए आए क्योंकि बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है प्रोविंस रीजन्स बन गए थे, प्रेसिडेंसी जो है सिटीज बन गई थी ऑफ द ब्रिटिश। यहीं से सारा का सारा पॉलिटिकल कंट्रोल जो है ये करे हुए थे। राइट क्लास? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इस वजह से
इस वजह से ये नए पोर्ट्स जब एग्जिस्टेंस में आए तो पुराने पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस था वो खत्म हो गया कंप्लीटली, और जितने भी पुराने मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो कंप्लीटली उनको जो है उनकी जो कंट्रोलिंग थी वो खत्म हो गई, और सारी की सारी कंट्रोलिंग और जो पावर थी वो यूरोपियन कंपनीज स्पेशली ब्रिटिश के हाथ में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। क्योंकि अगर आपको याद हो बक्सर की जो बैटल थी वो हारने के बाद बंगाल का जो पूरा कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। और सारा का सारा जो नया ट्रेड हो रहा था वो यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू हो रहा था, यूरोपियन कंपनीज के थ्रू हो रहा था, और यूरोपियन शिप्स यूज करी जा रही थी। मतलब कहीं से कहीं पुराने मर्चेंट्स, पुराने जो बैंकर्स थे, उनकी कंप्लीटली वो डिके हो गए थे, उनकी कंप्लीट जो है क्या बोलते हैं, उनका डाउनफॉल आ गया था। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी, उनके फाइनेंसेस, उनके क्रेडिट जो थे वो सब कहीं से कहीं कोई मायने नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि जो वीवर्स थे उन्होंने इनको सामान बेचना कम कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि जो कंपनी के जो वो थे, कंपनी के जो नुमाइंदे थे या जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जिनको कंपनी के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था टू कलेक्ट दी फैब्रिक, टू कलेक्ट दी कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम दी वीवर्स, तो वो वहां से कलेक्ट करके इनको यूरोपियन कंपनीज को, स्पेशली ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? No, ma'am. क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो इन्हें ये पता था कि अगर ये लोग लेके जाएंगे तो सारा का सारा प्रॉफिट इन्हीं को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर कंट्रोलिंग सारी की सारी इन्हीं कंपनीज की, इन यूरोपियन कंपनीज की थी, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की Yes, थी। ma'am. ठीक है, Yes, आई ma'am. होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम आते हैं इस थर्ड स्लाइड पे। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, ये सारे के सारे जो थे, इनके कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे इंडिया में, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश ने गेन करना शुरू करा था इंडिया में, उस टाइम पे उनका कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इनके कुछ ना कुछ पार्ट्स में जो है देयर कंट्रोलिंग द इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, अब क्या हुआ, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो कॉटन और सिल्क के रेगुलर सप्लाई जो है इंडियन वीवर्स से ले रहे थे। ठीक है, जब अब ये गोमस्ताज आप देख रहे हो, यहाँ पे गोमस्ता लिखा हुआ है, क्लास। Yes, ma'am. ये गोमस्ताज कौन हुआ करते थे? गोमस्ताज जो थे ये ऑफिशियल्स थे जो कि कंपनी के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए थे, और इनका काम सुपरवाइज करना होता था। इनका काम होता था कि जो वीवर्स हैं उनसे रेगुलर सप्लाई इंश्योर करते रहे, प्लस जो पैसा इनको रिक्वायर्ड है वो देते रहे। अब जो ब्रिटिश थे, जो कंपनी के जो वो थे एसोसिएट्स थे, या जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उनको ये लगता था कि भाई पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट में जो है इन लोगों का ही जो है दबदबा है, इंडियंस का ही दबदबा है, इंडियन वीवर्स की सारी वो कॉटन होती है। जब यहाँ से रॉ कॉटन वो लोग वहां ले जा रहे थे, तो मैनचेस्टर जो था, मैनचेस्टर को नया टेक्सटाइल्स जो है उन्होंने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी मैनचेस्टर में जो है इस्टेब्लिश करी। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पे आ गई थी। अब मैनचेस्टर का जो कॉटन था वो नोबडी वाज विलिंग टू बाय इन द यूरोपियन मार्केट्स। क्यों? क्योंकि उनको इंडियन कॉटन ज्यादा प्रेफर करते थे वो लोग, तो क्योंकि इंडियन कॉटन की जो क्वालिटी थी वो ज्यादा बेटर थी। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना कंट्रोल गेन करने के लिए इन वीवर्स को बाउंड कर दिया कि वो केवल जैसे एडवांसेस इनको देने लगे कि आप जो है एडवांसेस ले लो, और आप ही हमें जो है क्लॉथ जो है, आप अपना क्लॉथ हम ही को सेल आउट करोगे और किसी और को नहीं दोगे। तो पहले तो उन्होंने जबरदस्ती करी, पर बाद में उन्होंने एक और सिस्टम सोचा। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम इनको एडवांसेस देते हैं तो ये अपने आप बाउंड हो जाएंगे हम लोगों को ही अपने गुड्स को सेल करने के लिए। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने जो आपका जो कॉटन टेक्सटाइल होता है वो इन्होंने लेने से मना कर दिया। इन्होंने क्या करना शुरू करा, रॉ कॉटन जो है उसको, रॉ कॉटन को जो है लेना शुरू करा, और उसको प्रोसेस करवा के वो मैनचेस्टर ले जाते थे, और वहां से प्रोसेस करके उस फिनिश्ड गुड को ये लोग यूरोपियन मार्केट्स में सेल करना इन्होंने शुरू करा। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थे उसकी डिमांड खत्म हो गई, और जो
मैनचेस्टर का कॉटन था, टेक्सटाइल था, वो धीरे धीरे डिमांड में आने लगा। वहीं से रॉ कॉटन यहाँ से जाता था, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, वहां से प्रोसेस होके फिनिश्ड गुड के तौर पे वो इंडियन मार्केट्स में आने लगा, जिसकी वजह से जो इंडियन वीवर्स थे उनको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा। और ये जो वीवर्स थे ये परफोर्स दे वर फोर्स्ड टू ईदर रिवोल्ट और लीव व्हाट दे वर डूइंग एंड शिफ्ट टू सम अदर जॉब्स। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, many weavers had small plots of land which now they had to lease out to others and devote all their time to weaving. Weaving required the labor of the entire family. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो। ये इतना आप लोगों को समझ में आया बेटा? Can Yes, you? ma'am. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Is everybody there in the class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me check. Two people have left the class. When I'll take the attendance, I'll see to it. Okay. चलिए, इतना क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, ma'am. चलो, Yes. अब हम बुक में switch करते हैं। अब हम बुक का चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिससे कि can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay, can we have Kavya reading? Kavya, are you there? Yes, ma'am. Read beta. Ma'am, From a variety of Indian merchants. a variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods, and supplying exporters. Supply merchants linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving villages, and carried the supply to the ports. At the ports, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local courts, then the monopoly rights to trade. This resulted in a decline of the old ports of the Surat and Hooghly. Ma'am, what is this written? Just a second. Where? Ma'am, in this paragraph, last paragraph, Surat and Hooghly. ma'am. Hooghly through which local merchants had operated. Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. In the last years of 17th century, the gross value of trade that passed through the Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it had slumped to rupees 3 million. ठीक है, कह रहे जो ट्रेड सूरत से 16 मिलियन का होता था वो बाय 1740 धीरे धीरे पूरा श्रिंक होके कम होके 3 मिलियन पर आकर रुक गया। ठीक है, इतना क्लियर? इसमें कुछ समझाने की चीज तो नहीं है? No, ma'am. चलिए, कैन वी हैव अग्रिम रीडिंग? Yes, ma'am. रीड बेटा। While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power. Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. While many of the old trading houses collapsed,
Those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. How did these changes affect the life of weavers and other artisans? Ma'am, done. Should I continue? हाँ जी, हो गया बेटा? Yes, ma'am. Anything in this to be explained? No, ma'am. चलिए, No, ma'am. ma'am. Okay, can we have Akansha Yadav reading? Yes, ma'am. What happens to weavers? Happened. Oh, yes, ma'am, happened. The consolidations of East India Company power after 1760s did not initially lead to the decline in textile exports from India. British cotton industries had not yet expanded, and India and Indian fine textiles were in great demand in Europe. So the company was named on expanding textile exports from India. Before establishing political powers in Bengal and Carnatic in the 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for exports. The French Dutch, ma'am, please scroll. Just a second. हाँ, पढ़ो. Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth so the weavers and supply merchants could bargain and try selling to the produce to the best buyers. In their letters back to London, company officials continuously complained to difficulties of supply and the high price. However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost, and ensure regular supplies of cotton and silk goods. This it did through a series of steps. First, the company tried to eliminate the existing trades traders and brokers connect with the cloth trade and establish a more direct control over the weavers. It appointed हाँ जी, पढ़ो. Akansha. servant called the ma'am, what is it? पढ़ो बेटा. To supervise product to supervise weavers, collect supplies, and examine the quality of cloth. Second, it prevented company weavers from dealing with order buyers. One way of doing this was through the system of advances. Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material of their production. Those who took loan had to hand over the cloth they produced to the Gomastha. They could not take it to any other traders. As loans followed in the demand for fine textile expanded, weavers eagerly took the advance, hoping to learn more. Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated, along with weaving, and the produce from this took care of their families' need. Now they had to please scroll. Now they had to lease out of land and devote all their family needs. Now they had to uh, Lease out the land and devote. But can we have wait? and all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the Can we have, entire family. listen. Can we have Deep Shikha reading now?
Yes, ma'am. पढ़ो बेटा दीपशिका. Yes, ma'am. Ma'am, from now they had to lease out the land. यहीं से. Okay, ma'am. Now they had to lease out the land and devote all their time of weaving in fact required the labor of the entry family with children and women all engaged in different stages of the process. Soon, however, in many weaving villages there were reports of clashes between weavers and gomas. Ma'am, what is this? गोमस्तास. Gomastans. Earlier, supply merchants had very often lived within the weaving village and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in time of crisis. The new Gomastans were outsiders with no long-term social link with the village. They acted or thoroughly merchant into villages with They acted Stepno arrogantly. बेटा arrogantly. Marched aggregately to aggregately merchant into villages with Cephophones and Panos and pushed waiters for declares declares in supply, often beating and flowing them. The weavers lost the space of bargaining for prices and sell to different buyers. The price they received from the company was miserably low, and the loans they had accepted tied them to the company. all clear and Ma'am, understood. Anything to be explained over here, class? Yes, ma'am. ma'am, scroll the screen. हाँ बोलो बेटा. All clear and understood. Yes, ma'am. चलो, shall we proceed on then? Yes, ma'am. Yes, नहीं, ma'am. hardly 2 minutes, hardly time is left. तो आप हमें बताओ अब यहाँ तक जितना भी हमने करा है, it is all clear and understood. कोई ऐसी चीज जो आप लोग को ना समझ में आई हो बच्चे? बताइए. No, ma'am. Yes, ma'am. सब समझ में आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. नेक्स्ट वीक से आप लोग के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. डू नॉट मिस ऑन योर टेस्ट. अगर आप टेस्ट मिस करेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस में रहेंगे, क्योंकि 10th और 12th इन दोनों क्लासेस के लिए ये सारे टेस्ट बहुत जरूरी हैं. ये हम पहले भी शायद बता चुके हैं, बाकी टीचर्स भी आप लोग को बता चुके होंगे, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, सही है. Any time the meeting is going to end, so make sure to attend all your classes. There are many those who are still not attending. Priyanshu is attending classes or not? Ma'am, he attends the classes but not give any response. Not? Neeraj sir. Beta, but what did you say, Dhruv? But not what? Ma'am, he Ma'am, he didn't don't get any response response. to teachers. But I don't see his attendance. I saw his attendance only for, I think, biology or maths class. Only for one of the Yes, class. ma'am. That too only one day. Only ma'am science. हाँ. Just for one day I saw his